Hello everyone, welcome to Azmolas Academy. Today we are going to discuss the current affairs of week 3 of December month 2025, especially for polity and governance. Here we have 9 topics for this week. First topic is the issue of collegium formation that has been raised in Tamil Nadu, Supreme Court ruling regarding narco test. The third topic is link between inequality and public education. Fourth is social media content blocking under Sahyog portal. The fifth one is Biksit Bharat Shiksha Adhisthan Commission. The sixth topic is Lok Adalats. The seventh topic is VB Gram. This is a very important topic. The eighth topic is Supreme Court notice to Lok Sabha Speaker on Judges Inquiry Committee. And the ninth topic is traditional medicine system of India. Okay, so let's deep dive into these topics. So the first topic is the issue of collegium formation. अभी देखिए इसमें इशू क्या हुआ है, हमको इसमें पूरा collegium system नहीं जानना है मैंने, क्योंकि I think in the last week I have given the whole collegium system, how it works, what was its timeline, first judges के, second judges के, we have discussed that thing. But right now there is another concern that in Tamil Nadu, the High Court collegium, the High Court for the judges of High Court, the collegium has recommended the names to the Supreme Court, but the Tamil Nadu government has raised question on the appointment procedure, okay, because one of the senior most judge of the Tamil Nadu Madras High Court was absent in that collegium. That was the issue actually. So in this topic, we are going to discuss what is the collegium system of, especially for appointment of the judges in the High Court, and what is the whole procedure of it. Okay, तो पहले मैं वही आप लोगों को समझा देता हूँ कि प्रोसीड्योर क्या रहता है. ये देखिए मैंने यहाँ पे इन्फोग्राफिक भी आप लोगों को देख के रखा है, ये यहाँ से आप लोग देख सकते हैं. देखिए पहले क्या होगा, जो रिकमेंडेशन होगा वो रिकमेंडेशन स्टार्ट होगा हाई कोर्ट से. मतलब हाई कोर्ट में जो चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट है वो रहेगा, एंड 2 सीनियर मोस्ट जजेस विल बी देयर, एंड दे विल सी द प्रोस्पेक्टिव पर्सन्स हु कैन बी अपॉइंटेड एज द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट. उन सबको देखा जाएगा. उनके बाद वो लोग रिकमेंड करेंगे. वो रिकमेंडेशन किसके पास जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा. ठीक है. और ये जो रिकमेंडेशन है वो 6 महीना पहले बिफोर द वैकेंसी इज टेकिंग प्लेस, मतलब वैकेंसी होने से 6 महीना पहले ये रिकमेंडेशन देना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट को. देन द स्टेट गवर्नमेंट will check. After that, the state government will give it to the Union Law Ministry. The Union Law Ministry will give that recommendation to Supreme Court as well as the PM. Okay, मतलब the Law Ministry will check on behalf of the PM and check करेंगे कि मतलब उनका पर्सनालिटीज कैसा है, IB चेक होगा, इंटेलिजेंस वगैरह ये सब चेक होगा, एंड सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो चेक द क्रेडिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स. ओके, इफ द सुप्रीम कोर्ट अप्रूव इट. देखिए सुप्रीम कोर्ट में भी ये कॉलेजियम चाहिए होता है फॉर हाई कोर्ट जजेस. द 3 जजेस आर देयर, चीफ जस्टिस प्लस सीनियर मोस्ट 2 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. इफ द कॉलेजियम मतलब रिकमेंडेड द सेम थिंग, then the president give the appointment to those judges. Suppose for example president did not like the recommendation of the judges, then the president can send it for reconsideration. But again if it is passed, again if it is sent back to the president, then president has to give the appointment to the जजेस. तो यही है, पहले मतलब सुप्रीम कोर्ट जजेस में सुप्रीम कोर्ट जजेस को अपॉइंटमेंट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से शुरू होता है. हाई कोर्ट जजेस को अपॉइंट करने के लिए कॉलेजियम सिस्टम हाई कोर्ट से ही शुरू होता है. पहले हाई कोर्ट में जाएगा, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द सुप्रीम कोर्ट. आफ्टर दैट फाइनली द प्रेसिडेंट विल अपॉइंट द जजेस टू द हाई कोर्ट. अभी तमिलनाडु में इशू क्या हुआ है, ये जो पहला वाला स्टेप है, पहला वाला स्टेप में मैंने क्या बोला कि द हाई कोर्ट कॉलेजियम, मतलब कॉलेजियम में गठित होगा हाई कोर्ट का, जो चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट का, और 2 senior most judges. They will see the prospective candidates and recommended. But जो कॉलेजियम सिस्टम बना मतलब फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस, उसमें एक सीनियर जज था ही नहीं. तो इसीलिए जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है, दे आर रेजिंग द क्वेश्चन कि मतलब सीनियर मोस्ट जज तो था ही नहीं, मतलब एक सीनियर जज था ही नहीं जो मतलब कॉलेजियम में होना चाहिए था. तो आपने कैसे मतलब ये रिकमेंडेशन वगैरह दे दिया. तो वही क्वेश्चन आता है कि मतलब जो कॉलेजियम सिस्टम है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, एंड जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी का वही इशू आ जाता है. तो इसमें अंकुल सिंड्रोम, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, इन सब का ये डायमेंशन वगैरह भी आ जाता है. तो ओवरऑल न्यूज़ यही था, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से. देखिए जुडिशियल इंडिपेंडेंस एट द सेम टाइम जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी. इंडिपेंडेंस को मद्देनजर रखते हुए आप ट्रांसपेरेंसी को मतलब हटा नहीं सकते हैं. देयर नीड टू बी ट्रांसपेरेंट प्रोसीड्योर. तो इसीलिए एनजेएसी भी लाया गया था. लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था ना कि रिसेंटली एनजेएसी मतलब एक फिर से एक पिटीशन फाइल किया गया है, सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सेप्टेड इट.
तो अभी देखते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम के ऊपर मतलब कुछ चेंजेस आता है क्या नहीं, क्योंकि अभी भी तो जो कॉलेजियम सिस्टम है दैट इज नॉट दैट ट्रांसपेरेंट, क्योंकि जजेस आर अपॉइंटिंग द जजेस एंड इट इज नॉट फॉलोइंग एनी काइंड ऑफ लीगल प्रोसीड्योर, it is established on the basis of the convention or by the Supreme Court guidelines. Okay, so let's move into the second topic. हाँ, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन दिया है, प्लीज पॉज दिस वीडियो एंड यू कैन अटेम्प्ट इट. द सेकेंड टॉपिक इज सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ऑन नार्को टेस्ट. पहले मैं ये बता देता हूँ कि नार्को टेस्ट क्या है. आप लोगों ने फिल्मों में शायद ये सब देखा होगा कि नार्को टेस्ट मतलब एक इंजेक्शन दे देते हैं, ठीक है, एक इंजेक्शन सोडियम पेंटोथल बोल के एक इंजेक्शन देते हैं, उसको ट्रूथ सीरम भी बोलते हैं, मतलब क्योंकि वो सीरम दे देने से क्या होता है, दैट पर्सन गो इनटू ए वेरी डाउजी स्टेट, मतलब सब कॉन्शियस रहता है, ठीक है, थोड़ा सब कॉन्शियस थोड़ा कॉन्शियस रहता है, थोड़ा मतलब डाउजी जैसा वो आ जाता है, ठीक है. उसके बाद उसको क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताओ तो तुमने ये गुनाह किया है कि नहीं, ये हुआ है कि नहीं, तो ये बोला जाता है. इसी को नार्को टेस्ट बोलते हैं. लेकिन नार्को टेस्ट से कुछ लीगल एज वेल एज एथिकल इश्यूज भी सामने आता है, इसीलिए इट इज़ इन ए वेरी हाईली डिबेटेबल टॉपिक कि नार्को टेस्ट मतलब कब अलाउ करना चाहिए, कब अलाउ नहीं करना चाहिए. इसका जो नार्को टेस्ट करने के बाद जो मतलब कैंडिडेट जिसके ऊपर नार्को टेस्ट किया गया है वो जो बोलता है वो एविडेंस माना जाएगा नहीं माना जाएगा, इन सब के ऊपर मतलब डिबेट डिस्कशन चलता है. हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दिया है इसके ऊपर, वो सब हम लोग देखते हैं. अभी देखिए यहाँ पे मैंने देख के रखा है, देखिए नार्को एनालिसिस टेस्ट इज एन इन्वेस्टिगेटिव टेक्निक वेयर ए सब्जेक्ट इज एडमिनिस्टर्ड सोडियम पेंटोथल, इसको ट्रूथ सीरम भी बोलते हैं, ठीक है. ट्रूथ सीरम मतलब क्योंकि इसको देने के बाद डाउजीनेस आता है, थोड़ा सबकॉन्शियस लेवल में चला जाता है इंसान, तो थोड़ा मतलब जो सेंसेस है वो सेंसेस थोड़ा मतलब घटने लगता है एंड द पर्सन इज जनरली स्पीकिंग द ट्रूथ. लेकिन ये हमेशा 100% एक्यूरेट होता भी नहीं है और ये साइंटिफिकली प्रूवन भी नहीं है कि नार्को टेस्ट करने के बाद मतलब एक इंसान हमेशा सही ही बोलेगा, ठीक है. देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है, टू रिड्यूस द इनहिबिशन एंड मेक द सब्जेक्ट मोर लाइकली टू रिवील इन्फॉर्मेशन. ये जनरली नार्को टेस्ट जनरली कौन सा वाला केसेस में यूज होता है, जहाँ पे मतलब फॉर एग्जांपल द पुलिस हिट द डेड एंड, मतलब कुछ और इन्वेस्टिगेशन से मिल नहीं रहा है, कुछ एविडेंस मिल नहीं रहा है, ठीक है, द केस इज फर्दर नॉट गोइंग एनीवेयर, तब ये नार्को टेस्ट किया जाता है, स्पेशली फॉर मेजर क्राइम्स लाइक मर्डर, टेररिज्म, सेक्सुअल असल्ट, ऑर्गेनाइज क्राइम, ठीक है. बट देखिए नार्को टेस्ट में एक बात मैं बता देता हूँ, नार्को टेस्ट में जो इंसान बोलेगा मतलब जिसके ऊपर नार्को टेस्ट किया गया, सपोज मेरे ऊपर नार्को टेस्ट किया गया है, मैंने जो जो इन्फॉर्मेशन दिया है, दिस इन्फॉर्मेशन आर नॉट एक्सेप्टेड एज एन एविडेंस, ओके, दिस आर नॉट एन एविडेंस. लेकिन जो मैंने बोला है उसको मद्देनजर रखते हुए या उसको एक टूल हिसाब से मतलब यूज करके जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाएगा या कुछ दूसरा भी मतलब खोजा जा सकता है कि ऑन द बेस्ड ऑफ माय इंफॉर्मेशन द पुलिस कैन फाइंड आउट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, वो एविडेंस हिसाब से माना जाएगा. लेकिन mere my information or mere my speech will not be considered as evidence, but on the basis of that information the findouts of the police or find out of the investigation agencies can be used as an evidence. Okay, it is not considered as a scientific evidence but an investigative aid. मतलब हाँ investigative aid तो हो सकता है. aid मतलब क्या कि मतलब it will give you some information, on the basis of that information you can further investigate and find some proofs and that proofs can be used as an evidence. Okay, how narco test works मैंने बोला ही है कि मतलब एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में सोडियम पेंटोथल इंजेक्ट किया जाता है, उसके बाद जो सब्जेक्ट है जो इंसान है वो एक डाउजीनेस में चला जाता है, एक स्टेट में चला जाता है, वो जो बोलता है वो पूरा सेशन एक वीडियो रिकॉर्डिंग के तरह रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है. स्टेटमेंट्स मेड ड्यूरिंग दिस टेस्ट आर नॉट एडमिसिबल एज एन एविडेंस बट लेड टू द डिस्कवरिंग न्यू क्लूज. देखिए वाई लॉ एनफोर्समेंट यूजेज इट, क्यों करता है, क्योंकि देखिए मैंने अभी बताया है आपको कि जब पुलिस मतलब इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी मतलब जब डेड एंड को मतलब हिट कर ले, एक्यूज बोल ही नहीं रहा है कुछ भी, ही इज़ वेरी मतलब और शी इज़ वेरी मतलब चालाक, ठीक है, मतलब कुछ आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है, तब नार्को टेस्ट अप्लाई किया जाता है. लेकिन देखिए नार्को टेस्ट करने के लिए कोर्ट का भी ऑर्डर लेना बहुत ज़रूरी है और जो इंसान है उस इंसान का भी कॉन्सेंट लेना मैंडेटरी है. दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज देखिए आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22, these are all in context of these things. आर्टिकल 20 क्लॉज 3 राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट है ये, है ना.
उसके बाद आर्टिकल 21 पर्सनल लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी भी तो वायलेट हो रहा है, तो इसीलिए सेल्फ कॉन्सेंट लेना बहुत जरूरी है, कोर्ट से ऑर्डर लेना बहुत जरूरी है। आर्टिकल 22 में प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोएसिव इंटरोगेशन, टॉर्चर मतलब अगेंस्ट है ना, तो कोएसिव इंटरोगेशन के खिलाफ है, आर्टिकल 22 प्रोटेक्ट करता है इसको, ठीक है। तो इन सब फंडामेंटल राइट्स भी वायलेशन होने का चांसेस रहता है। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट क्या दिया गया है देखिए, सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ और ब्रेन मैपिंग कैन नॉट बी कंडक्टेड विदाउट कंसेंट, कॉन्सेंट लिए बिना फोर्सफुली नार्को टेस्ट नहीं किया जा सकता है किसी के ऊपर, ठीक है। फोर्सेबल नार्को टेस्ट वायलेट्स आर्टिकल 20 क्लॉज 3 राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, आर्टिकल 21 राइट टू पर्सनल लिबर्टी, है ना। स्टेटमेंट्स में अदर नार्को टेस्ट आर नॉट एडमिसिबल एज एविडेंस, मैंने बार बार बोला भी है, 3 बार मैंने बोल चुका हूँ कि द स्टेटमेंट्स गिवन बाय दैट सब्जेक्ट are not be considered as evidence, but the information given by the subject can be used as a tool for further investigation, and the proofs or some other evidence or some any other materials or any other information that can be find out by using the tools that can be used as an evidence in the court, ठीक है। The judgment established informed consent plus medical supervision। अभी current legal position क्या है, नार्को एनालिसिस लीगल है लेकिन विथ इन रिटन वॉलेंट्री एंड इन्फॉर्म कॉन्सेंट, मतलब कॉन्सेंट लेना ही पड़ेगा, कोर्ट का ऑर्डर लेना ही पड़ेगा, ठीक है। इट इज कैनॉट बी यूज्ड एज अ डिफिनिटिव प्रूफ, ओके। इट डज नॉट ओवरराइड द प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। पुलिस कैनॉट फोर्स और प्रेशराइज पर्सन टू गो फॉर नार्को टेस्ट, मतलब प्रेशराइज नहीं कर सकता है, ओके। देखिए इंटरनेशनल स्टैंड में यूएसए, यूके, कनाडा, इन सब में इसको ऑलरेडी बैन कर दिया गया है, ये नहीं चलता है वहाँ पे। एथिकल इश्यूज भी आ जाता है। एथिकल इश्यूज क्या है, वायलेशन ऑफ मेंटल प्राइवेसी, मतलब नार्को टेस्ट में सेंसेस नहीं रहते हैं तो कुछ भी बोल सकते हैं, जो प्राइवेसी का हनन हो सकता है, जो वो केसेस का डायरेक्टली रिलेटेड ना हो, तो आर्टिकल 21 वायलेट हो सकता है। पॉसिबिलिटी ऑफ फॉल्स मेमोरीज, पोटेंशियल फॉर कोरेक्शन, है ना, डिमिनिश ऑटोनॉमी, नॉट 100% रिलायबल और साइंटिफिक, रिस्क ऑफ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल हार्म, तो ये सब तो है ही। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ये क्वेश्चन दिया है, प्लीज पॉज दिस वीडियो एंड अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिंक बिटवीन इनइक्वालिटी एंड पब्लिक एजुकेशन। अभी देखिए ये एकदम सिंपल टॉपिक है। अभी एक रिपोर्ट आया है, वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट जो है, वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब ने इसको रिलीज किया है 2026 में। ये एकदम सिंपल मतलब एक टॉपिक है, क्योंकि देखिए अगर आपके पास पैसा है नहीं तब आप एजुकेशन में भी पैसा कम ही खर्च करेंगे, ठीक है। जब आप एजुकेशन में पैसा कम खर्च करेंगे तो आपका जो स्किल डेवलपमेंट है वो स्किल डेवलपमेंट भी कम होगा। अगर स्किल डेवलपमेंट कम होगा तो अनएम्प्लॉयबिलिटी भी होगा। अनएम्प्लॉयबिलिटी मतलब आप काम करने के लिए लायक भी तो नहीं बनेंगे अगर स्किल ही नहीं है तो। अगर अनएम्प्लॉयबिलिटी है तो अनएम्प्लॉयमेंट भी है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तब तो फिर से वो पॉवर्टी की तरफ चला जाएगा, या जो ओवरऑल कंट्री है वो ओवरऑल कंट्री को जो डेवलप बनना था वो नहीं बन पाएगा। मतलब we need to invest more on education, but at the same time it shows that कि जो the countries which are investing more on education, skill development, they are producing better skill labor workforce, they are producing human beings which are more capable of doing some work, they have good human capitals, मतलब formation of human capital linked with investment in the पब्लिक एजुकेशन। एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करना, इट इज डायरेक्टली लिंक्ड विद ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मतलब क्या, कि एज ए ह्यूमन बीइंग हाउ कैपिटल यू आर, हाउ यू कैन बी यूज्ड एज ए कैपिटल। कैपिटल मतलब क्या, यू हैव टू हैव सम काइंड ऑफ स्किल, देन ओनली यू कैन क्रिएट कैपिटल्स, है कि नहीं। तो एजुकेशन इज डायरेक्टली लिंक विथ व्हाट, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, एट द सेम टाइम इकोनॉमिक ग्रोथ। अभी एजुकेशन में अगर कम पैसा इन्वेस्ट होगा तब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कम होगा और ओवरऑल डेवलपमेंट भी कम होगा। अभी जिसके पास पैसा ज़्यादा है वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन विल बी बेटर एंड जॉब विल बी और द डेवलपमेंट विल बी बेटर। तो ये जो पब्लिक एजुकेशन में जो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, ये डिसाइड कर देता है ना इनइक्वालिटी। जिसके पास ऑलरेडी पैसा है वो तो इन्वेस्ट करके और आगे बढ़ता जाएगा, जिसके पास पैसा कम है उसके पास तो मतलब जॉब वगैरह ये सब कम ही होता जाएगा। मतलब रिच विल बी गेटिंग रिचर एंड पोर विल बी पोरर, है कि नहीं। तो ये यही बात बोलता है ये, ठीक है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2026 shows rising global income and wealth gaps, highlighting
हाउ अनइक्वल पब्लिक स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन रीइंफोर्सेस लॉन्ग टर्म इनइक्वलिटी। लॉन्ग टर्म इनइक्वलिटी तो है ना, ये जो मैंने साइकिल बताया ना आपको कि एजुकेशन, उसके बाद क्या आएगा स्किल, स्किल के बाद क्या आएगा जॉब या एम्प्लॉयबिलिटी, एम्प्लॉयबिलिटी, एम्प्लॉयबिलिटी आएगा तो क्या आएगा डेवलपमेंट आएगा। अगर डेवलपमेंट आएगा, ज़्यादा पैसा मिलेगा, तब फिर से आप एजुकेशन में क्या कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, है ना। अगर नहीं होगा तो वो पॉवर्टी की तरफ चला जाएगा, है ना। तो इट विल राइज द इनइक्वलिटी थिंग। डाटा क्या क्या है देखिए, द टॉप 10% own 75% of the global wealth, the bottom 50% hold only 2% wealth. So this is a huge wealth gap, it is a huge inequality report, okay. This shows how unequal the society is, how unequal the layers of society is, ठीक है, in the global level। यहाँ पे क्या बोला गया है कि 70% 75% holds the top 10% holds the 75% of the wealth and the bottom 50% holds only 2%, ठीक है। पब्लिक एजुकेशन के हिसाब से अगर माना जाए तो क्या है देखिए, पर स्कूल चिल्ड्रन वेरीज शार्पली, ये जो मतलब रीजन के हिसाब से ये पब्लिक एजुकेशन में ये जो इनकम मतलब इन्वेस्टमेंट है, जो इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट है वो वेरी करता है। पहला वाला क्या बोला है देखिए, नॉर्थ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया कंट्रीज में ओवर 9,000 यूरोज स्पेंड किया जाता है ओवर ईयरली, ठीक है। साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया में अराउंड 1,600 यूरोज यूज किया जाता है। सब सहारन अफ्रीका में अराउंड 200 यूरोज हैज बीन यूज्ड, ठीक है। तो ये पब्लिक स्पेंडिंग, पब्लिक एजुकेशन स्पेंडिंग है, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका ओशिनिया में ज़्यादा स्पेंडिंग हो रहा है एजुकेशन, तो वहाँ पे क्या होगा, स्किल डेवलपमेंट भी होगा, एम्प्लॉयबिलिटी भी ज़्यादा होगा, डेवलपमेंट ग्रोथ भी ज़्यादा होगा। बाकी रीजन पे जहाँ पे मतलब पैसा कम इन्वेस्ट किया जा रहा है, साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया में, सब सहारन अफ्रीका में, वहाँ पे थोड़ा और कम होगा। तो इनइक्वलिटी बिटवीन दिस रीजन्स विल बी इंक्रीज। एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो आता है ना कि नॉर्थ, ग्लोबल साउथ एंड ग्लोबल नॉर्थ, है ना, ये डायरेक्शन नहीं दिखाता है, ये क्या दिखाता है, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव दिखाता है। ग्लोबल नॉर्थ में जनरली वही सब कंट्रीज आता है जो ऑलरेडी कंसिडर्ड एज डेवलप, ग्लोबल साउथ में वो सब कंट्रीज आता है जो डेवलपिंग है या पोर है, ठीक है। तो जो पोर है उसका इन्वेस्टमेंट भी कम ही होगा, है ना, तो इनइक्वलिटी बढ़ता ही जाएगा। तो यही है पूरा टॉपिक, ठीक है। ये जो मैंने अभी साइकिल बता के आपको दिया था ना, जो वर्सो साइकिल दैट मे बिकम विशियस साइकिल, यही यहाँ पे लिखा गया है, एक बार आप लोग देख सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद ये एक MCQ दिया है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बाय पॉजिंग दिस वीडियो। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोशल मीडिया कंटेंट ब्लॉक बाय सहयोग पोर्टल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सहयोग पोर्टल की थ्रू जो सोशल मीडिया कंटेंट वगैरह होता है उन सबको मतलब हटाया जा सकता है। देखिए कैसे काम करता है, मैं ये पहले बता देता हूँ। सहयोग पोर्टल के थ्रू कंप्लेन दर्ज किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल द एजेंसीज, फॉर एग्जांपल स्टेट पुलिस हो गया, CBI हो गया, कोई भी हो गया, मतलब साइबर सेल जो वगैरह है, वो सब क्या कर सकते हैं, सहयोग पोर्टल में एक रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं। मतलब सपोज फॉर एग्जांपल फेसबुक में एक कंटेंट आया है जो एंटी नेशनल है, ठीक है। तो द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, द पुलिस स्पेशली फॉर एग्जांपल, द पुलिस सहयोग पोर्टल में जाके फेसबुक को ये कॉन्सर्न बता सकता है कि देखिए ये कंटेंट एंटी नेशनल है, इसको स्ट्राइक डाउन कीजिए। तो फेसबुक क्या करेगा, उस कंटेंट को स्ट्राइक डाउन करेंगे, ठीक है। मतलब सहयोग पोर्टल खुद ब खुद उस कंटेंट को मतलब स्ट्राइक डाउन नहीं करता है। सहयोग पोर्टल में यू कैन लॉन्च द कंप्लेंट, यू कैन गिव डायरेक्शन टू दैट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कि देखिए इस कंटेंट को हटा दीजिए, ठीक है। दैट इज द टूल, दैट इज द इट कैन बी सीन एज ए ब्रिज बिटवीन द अथॉरिटी एंड द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। तो वही पूरा न्यूज़ है कि कहाँ पे क्या क्या है, डाटा क्या क्या है, वही हम लोग देखते हैं। देखिए एक RTI मतलब फाइल किया गया था, उसमें ये दिखाया गया है कि सहयोग पोर्टल द गवर्नमेंट इशूड 2312 ब्लॉकिंग ऑर्डर्स अक्रॉस मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फॉर हार्मफुल और अनलॉफुल ऑनलाइन कंटेंट। तो गवर्नमेंट ने मतलब इस सहयोग पोर्टल में ये फाइल किया है, कितना फाइल किया है, कंप्लेंट कितना फाइल दर्ज किया गया है, 2312, ठीक है। थोड़ा सहयोग पोर्टल के बारे में यहाँ पे लिया गया है। इट इज बीन लॉन्च बाय IC4, ठीक है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। सहयोग पोर्टल is an online coordination platform developed by Government of India through MeitY
to enable lawful information requests and content takedown notices between government agencies and social media online platform. So it is acts like a bridge. It is a platform where the authority will file the complaint कि देखिए ये जो content है ये content unlawful है, ये फेक न्यूज़ है, र्यूमर है, इट इज़ एंटी नेशनल, इसको स्ट्रक डाउन कीजिए। वो कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो सकता है, फेसबुक हो सकता है, यूट्यूब हो सकता है, उसके बाद व्हाट्सअप हो सकता है, इंस्टाग्राम हो सकता है, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो सकता है। उस पोर्टल के थ्रू इंफॉर्मेशन जाएगा अथॉरिटी से एंड द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैज़ टू एक्ट ऑन दैट इंफॉर्मेशन, उसको करना ही पड़ेगा, ठीक है। Its main purpose is to ensure quick, transparent and accountable communication when online content needs action under Indian law. The Sahyog portal itself does not automatically or independently block content on social media platforms. मैंने बोला ये कि the Sahyog portal acts like a bridge. It will not directly block the content. Through the Sahyog portal, the social media platform will get to know कि which content need to be blocked, and it will get the information from the authority. Okay. What Sahyog can do? It allows the state police, central agencies, authorities, officers to issue takedown or blocking requests. These notices are sent under Section 17(9) of Information Act. ठीक है? Platforms like WhatsApp, Facebook, YouTube, Instagram receive these orders. Typically take down the flagged content. जो content flag किया गया है मतलब, ठीक है? मतलब बोला गया है इस content को strike down कीजिए, उस content को strike down किया जाता है, ठीक है? देखिए डाटा क्या दिया गया है यहाँ पे, स्केल ऑफ द कंटेंट ब्लॉकिंग, टोटल ऑर्डर्स 2312 है, उसमें से सबसे ज़्यादा मेटा प्लेटफॉर्म्स के ही रिलेटेड है। अराउंड 78% ऑफ दिस कंटेंट आर रिलेटेड विद मेटा। मेटा मतलब इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सअप, ये तीनों मेटा के अंदर ही आता है। तो ये पूरा 78% ऑफ द कंटेंट दैट इज बीन रेज्ड एज ए फ्लैग कंटेंट, ठीक है, मतलब कि ये मतलब थोड़ा सस्पिशियस कंटेंट है, उसमें से 78% आर फ्रॉम मेटा प्लेटफॉर्म्स। व्हाट्सअप में कितना किया गया है 1392, फेसबुक में 255, यूट्यूब में 176, ठीक है, मतलब इतना कंटेंट, इतना नंबर ऑफ कंटेंट हैज बीन फ्लैग्ड अंडर सहयोग पोर्टल, ठीक है। कंटेंट ब्लॉक करना क्यों जरूरी है? ऑब्वियसली टू कर्ब मिस इन्फॉर्मेशन, र्यूमर्स, ठीक है, टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर, क्योंकि देखिए अगर मिस इन्फॉर्मेशन, हेट स्पीच, र्यूमर्स, इन सब से बहुत कुछ चीज़ें खराब हो सकता है देश में। एंटी नेशनल सेंटिमेंट्स बढ़ सकता है, सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज बढ़ सकता है, ठीक है, टेररिस्ट एक्टिविटीज बढ़ सकता है। द सोशल मीडिया समटाइम यूज एज ए यूज बाय द टेररिस्ट फॉर देयर प्लेटफॉर्म टू कनेक्ट द स्लीपर्स लेवल्स, ठीक है, या फंडामेंटलिज्म, जो मतलब रिलीजियस रेडिकल फंडामेंटलिज्म है, उसको ग्रोथ करने के लिए भी सोशल मीडिया को यूज किया जाता है। तो स्पेशली ऑब्वियसली द गवर्नमेंट शुड हैव द अथॉरिटी और शुड हैव द पावर to strike down those kind of contents, but at the same time it give a question that क्या मतलब गवर्नमेंट के पास तो ये पावर आ गया स्ट्रक डाउन कर देने का, ठीक है, लेकिन इससे तो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वाला है वो भी तो मतलब वायलेट हो सकता है, क्योंकि देखिए हेट स्पीच क्या है, किस कंटेंट, क्या कंटेंट फेक है, र्यूमर है, कौन सा कंटेंट सही है गलत है, ये कौन डिसाइड कर रहा है? गवर्नमेंट डिसाइड कर रहा है। अगर एक फॉर एग्जांपल ए पर्सन इज स्पीकिंग समथिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ओके, तब भी तो गवर्नमेंट मतलब उसको मिसयूज करके उसको स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं। तो इट्स बिकम ए एथिकल इशू, इट्स बिकम ए लीगल इशू, इट्स बिकम ए कॉन्स्टिट्यूशनल इशू कि मतलब फंडामेंटल राइट तो एक है वर्सेस पब्लिक ऑर्डर या सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला भी एक इशू है, पब्लिक ऑर्डर वर्सेस पर्सनल राइट्स। तो गवर्नमेंट नीड टू बैलेंस दिस थिंग्स, लेकिन हाँ इसको मिसयूज भी किया जा सकता है, वही सब कॉन्सर्न वगैरह है, लेकिन होना भी सही है टू कर्ब द फेक न्यूज़, टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो वो ये है क्या होगा कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि क्यों स्ट्राइक डाउन क्या है, अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, ठीक है, एक्सप्लेनेशन होना चाहिए कि क्यों किया गया है, क्या ये डीप फेक था, मॉर्फिंग था, ये फेक र्यूमर था, अगर फेक र्यूमर था तो उसका ओरिजिनल सोर्स क्या है, ठीक है, ये सब मतलब ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द कंटेंट कि व्हिच कंटेंट नीड टू बी स्ट्रक डाउन। नहीं तो ये तो मतलब थोड़ा अथॉरिटियन की तरफ चला जाएगा कि मतलब सोशल मीडिया में कुछ भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट खिलाफ जाएगा तब गवर्नमेंट उसको स्ट्राइक डाउन कर देंगे बोल के कि ये एंटी नेशनल है ना। तो द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द कंटेंट नीड टू बी व्हाट ट्रांसपेरेंट, ठीक है, तो वही बोला गया है इस आर्टिकल में। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन दिया है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट इट इन आवर कमेंट बॉक्स, ठीक है। देन नेक्स्ट टॉपिक इज दिस वेरी इंपॉर्टेंट, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान कमीशन। ये देखिए, ये एक्चुअली इट इज़ अ रिकमेंडेशन फ्रॉम NEP 2020,
जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी था 2020 में, वो ये रिकमेंड किया था कि मतलब जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उन सबको एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आना चाहिए, ठीक है। अभी तो टेक्निकल एजुकेशन के लिए दूसरा है, ठीक है, बाकी यूनिवर्सिटीज़ के लिए दूसरा है, यूजीसी वगैरह है, ठीक है, एआईसीटी है। तो इन सबको मर्ज करके एक ही मतलब इंस्टीट्यूशन बनाना चाहिए, उसके अंदर ही सब इंस्टीट्यूशन को लाना चाहिए एक्सेप्ट द मेडिकल एंड लीगल थिंग्स, ओके, लीगल स्टडीज, इन सबको हटा के बाकी सबको एक ही इंस्टीट्यूशन के अंदर लाना चाहिए कि मतलब पेमेंट वगैरह, रेगुलेशन वगैरह, रूल्स रेगुलेशन वगैरह, ये सब मतलब प्रोसीड्यूर वगैरह वो सब एक फॉर्मलाइज हो रहे हैं, नॉर्मलाइज हो जाए, ठीक है। और कंट्रोल करने के लिए भी, एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशिएंसी के लिए भी बहुत बेहतर रहता है। तो वही है, वही उसी के बारे में ही मतलब एक न्यूज़ है, ये देखते हैं हम लोग क्या है। द गवर्नमेंट प्लान्स टू एस्टैब्लिश विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान कमीशन to replace fragmented higher education regulatory system, bring all functions under single architecture and envisioned by the National Education Policy 2020. The fragmented regular क्या है देखिए, कौन सा है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी, ये फंडिंग वगैरह देता है, इकोनॉमिक एकेडमिक स्टैंडर्ड्स वगैरह ये डिसाइड करता है। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इट इज स्पेशली फॉर द टेक्निकल एजुकेशन, इंजीनियरिंग कॉलेजेस कम्स अंडर दिस इंस्टीट्यूशन। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के लिए ये काउंसिल है। इन सब को मर्ज करके एक ही इंस्टीट्यूशन में लाया जाएगा, ठीक है, सो दैट इट विल बी वेरी इजी फॉर मेकिंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस, फॉर्मलाइज एवरीथिंग, ठीक है, पेमेंट वगैरह सब कुछ सही हो जाए, रेगुलराइज हो जाए, ठीक है, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशिएंसी भी सही हो जाए। इसके लिए एक को ही मतलब एक ही मतलब अम्ब्रेला इंस्टीट्यूशन के अंदर इसको लाना है, ठीक है। इम्प्लीकेशन एंड सिग्निफिकेंस क्या होगा देखिए, इट एंश्योर्स कोहेरेंट एंड प्रेडिक्टेबल रेगुलेटरी गवर्नेंस, reduces compliance burden for universities and promote multidisciplinary growth, strengthen quality assurance, supports research expansion and aligns institutions, helps India to move towards globally benchmark higher educational ecosystem, ठीक है। तो एक छोटा सा न्यूज़ था, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे कुछ डाटा दिया है, एक बार आप लोग देख लीजिए। NAP 2020 recommended single higher education system. India has over 1100 universities, 43 million learners, making unified regulation. Regulatory fragmentation, multiple bodies with overlapping rules leading to inefficiency. मैंने बोल रहा था ना कि बोला एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशिएंसी लाना चाहिए। और जो विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान कमीशन बनाया जाएगा, that will be on the basis of NAP recommendations and it will include all the institutions like UGC, AICTE, NCTE, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं लोक अदालत। लोक अदालत देखिए, इट इज ए स्टैटिक टॉपिक, लेकिन मैं थोड़ा इसके बारे में बोल देता हूँ। लोक अदालत इट इज नथिंग बट ए टूल फॉर ADR। ADR मीन्स ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म, ठीक है। देखिए हमारे इंडिया में डिस्प्यूट रिजोल्यूशन करने के लिए तो नॉर्मली क्या है, जुडिशरी है, ठीक है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। लेकिन ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म भी कुछ मतलब एग्जिस्ट करता है, जैसे नारी अदालत हो गया, लोक अदालत हो गया, ठीक है। इस तरह का ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म मतलब एग्जिस्ट करता है। अभी इन सब का काम क्या है देखिए, स्पेशली लोक अदालत का काम क्या है। लोक अदालत का काम क्या है कि अगर कोई एक केस फंसा हुआ है मतलब जुडिशरी में, उस केस को भी लोक अदालत ले सकता है और उसको रफा दफा कर सकते हैं, क्योंकि लोक अदालत इट इज जनरली बेस्ड ऑन नेचुरल जस्टिस, ठीक है। और प्री लिटिगेशन स्टेज में भी लोक अदालत में वो केस फाइल किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल मतलब आप जुडिशरी में ना जाइए, आप लोक अदालत में आइए, वहीं पे आपको आप केस का डिस्प्यूटेशन कीजिए, मतलब केस रिजॉल्व कीजिए, ठीक है। देखिए लोक अदालत या ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म्स क्यों रहते हैं, क्योंकि देखिए ऑलरेडी आवर जुडिशरी इज ओवरबर्डन, अराउंड 5 करोड़ केसेस आर पेंडिंग इन इंडियन जुडिशरी। और अगर केसेस बढ़ता जाएगा तब तो पेंडिंग और बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि देखिए जो जस्टिस सिस्टम है, जो जजेस मतलब जो जस्टिस देते हैं, वो जस्टिस देने का जो समय लगता है वो अराउंड 5 years to 6 years लगता है। तो इसलिए पेंडिंग हमेशा ही बढ़ता जा रहा है। तो इसीलिए जो स्मॉल जो मतलब केसेस हैं जिसको मतलब बाहर ही मतलब सेटल किया जा सकता है, उन सब के लिए लोक अदालत बहुत बेहतरीन स्थान है, ठीक है। वहाँ पे जो एग्जैक्ट जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उन सबको थोड़ा बाईपास करते हुए, नेचुरल जस्टिस की तरफ थोड़ा तिलतित करते हुए सॉल्यूशंस वगैरह दिया जा सकता है। इसीलिए इट इज़ ए वेरी इफेक्टिव टूल फॉर स्मॉल केसेस, स्पेशली फॉर सिविल केसेस, ठीक है। देखिए लोक अदालत रिमेन इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। परमानेंट लोक अदालत एंश्योर जस्टिस इन एसेंशियल सर्विस। अभी देखिए वेरियस टाइप्स ऑफ लोक अदालत आर देयर, आई एम गोइंग टू डिस्कस दोस थिंग्स, डोंट वरी।
कॉन्टेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंस यहाँ पे दिया गया है कि 5 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं जुडिशरी में, तो इसीलिए अगर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म आता है लोक अदालत जैसा, तब तो सही है कि नहीं? तब तो मतलब बर्डन थोड़ा कम ही हो जाएगा। लोक अदालत अगर कोई केसेस सोल्व कर देता है। लोक अदालत कब एस्टेब्लिश किया गया था? लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट ऑफ 1987, ठीक है। इट डिलीवर कॉन्सेंसस बेस्ड कॉस्ट फ्री स्पीडी जस्टिस स्पेशली बेनिफिटिंग द वनरेबल ग्रुप्स। देखिए डीपीएसपी में आप लोगों को पता होगा इक्वल जस्टिस बोल के एक चीज है। इक्वल जस्टिस मतलब क्या कि जस्टिस नीड टू बी एक्सेसिबल फॉर एवरीवन, ठीक है। जस्टिस नीड टू बी एक्सेसिबल फॉर एवरीवन। जुडिशरी इज एक्सेसिबल फॉर एवरीवन, बट प्रैक्टिकली फॉर द सोशियो इकोनॉमिक रीजंस नॉट एवरीबडी कैन अप्रोच सुप्रीम कोर्ट, नॉट एवरीबडी कैन अप्रोच हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में एक लॉयर का एक दिन का हियरिंग इट इज अराउंड 25 to 30 lakhs अगर अच्छा लॉयर आप लेते हैं तो इट इज़ नॉट वेरी मच पॉसिबल फॉर ए मिडिल क्लास फैमिली और फॉर ए पोर पर्सन। तो इसीलिए ये सब ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म्स रहता है टू रिजॉल्व दिस थिंग्स। एट द सेम टाइम ये जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987 इसके अंदर नालसा भी गठित किया गया था कि टू हेल्प द पोर टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पोर। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइए ये कौन सा आर्टिकल के अंदर आता है, डीपीएसपी में ही है, कौन सा आर्टिकल के अंदर आता है। अभी देखते हैं लोक अदालत काम कैसे करते हैं। अभी देखिए इट सेटल द पेंडिंग केसेस एज वेल एज इट विल सेटल द प्री लिटिगेशन केसेस। मतलब प्री लिटिगेशन केसेस मतलब क्या, जो अभी तक केसेस फाइल नहीं हुआ है उन सब डिस्प्यूट को भी रिजोल्व करता है, और जो केसेस फाइल हो चुका है उन सब केसेस को भी फाइल मतलब रिजोल्व करता है। अभी देखिए इसमें कोई कोर्ट फी वगैरह है नहीं। जो प्री लिटिगेशन स्टेज में है वो तो केस मतलब फाइल किया ही नहीं, तो उसके लिए तो कोई कोर्ट फी है ही नहीं, वो फ्री है। लेकिन जिसने मतलब केस फाइल कर दिया था उसमें तो कोर्ट फी वगैरह चाहिए था। तो लोक अदालत अगर वो डिस्प्यूट रिजोल्व कर देता है तब वो क्या होगा, जो कोर्ट फी दिया गया था उस कोर्ट फी को उसको वापस दे दिया जाएगा। एवर्ड्स आर फाइनल एंड एनफोर्सेबल एज सिविल कोर्ट डिक्रीज, नो अपील इज परमिटेड। क्योंकि देखिए ये जो लोक अदालत में वही एक इशू भी है, लोक अदालत में देखिए कॉन्सेंसस बेस्ड ऑन होता है, इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेंसस। दोनों पार्टी को मतलब मानना पड़ेगा तभी कोई सोल्यूशन निकल सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। मतलब लोक अदालत एक्ट एज ए प्लेटफॉर्म टू ब्रिंग बोथ द पार्टीज एंड रिजोल्व द डिस्प्यूट, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंसस कि ये आप थोड़ा मान लीजिए, ये आप थोड़ा मान लीजिए, ठीक है। दोनों पार्टी अगर मतलब उसमें आ जाता है, कॉन्सेंसस में आ जाता है, तब मतलब ये माना जाता है। लेकिन देखिए जो मतलब ऐसा ऑफेंसेस है जैसे मर्डर वगैरह हो गया, रेप वगैरह हो गया, ये सबको तो मतलब कोर्ट में ही जाना पड़ेगा। लोक अदालत कैन नॉट रिजोल्व दिस इश्यूज। मोस्ट इफेक्टिव फॉर एग्जाम्पल चेक बाउंस, मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स, फैमिली डिस्प्यूट्स, बैंक रिकवरी, प्रोप्राइटरी इशूज, ठीक है, इन सब के लिए लोक अदालत सही है। लेकिन जो मेजर क्राइम्स वगैरह हैं जिसके लिए मतलब आपको कोर्ट के पास ही जाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब मर्डर केस में आप लोक अदालत में नहीं जा सकते ना कि मतलब इसने मेरा भाई को मार दिया मैं भी इसका भाई को मार दूंगा, दैट इज नॉट बी जस्टिस, राइट। तो वो नहीं हो सकता, लोक अदालत में ऐसा केसेस नहीं दर्ज हो सकता है, वो उसके लिए आपको कोर्ट में ही जाना पड़ेगा। लोक अदालत जनरली एक्ट एज ए प्लेटफॉर्म एंड इट बेस्ड ऑन कॉन्सेंसस बेस्ड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, ठीक है, वही उसका ड्रॉबैक है एक्चुअली। तो हम लोग देख लेते हैं कि वेरियस टाइप्स ऑफ लोक अदालत क्या है। नेशनल लोक अदालत है। नेशनल लोक अदालत इट इज जनरली ऑर्गेनाइज अक्रॉस द कंट्री ऑन ए सिंगल डे। ये एक ही दिन में मतलब वो लोक अदालत गठित किया जाता है, मतलब क्या गठित मतलब क्या उस दिन फंक्शन होता है, और वो सुप्रीम कोर्ट से लेके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक हर कोर्ट में ही मतलब ये कॉन्डक्ट किया जाता है, ठीक है। कॉन्डक्टेड एट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तालुक कोर्ट, सब में ही किया जाता है। एंड एट द सेम टाइम ए लार्ज नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस आर रिजॉल्व। एग्जाम्पल्स क्या क्या है देखिए, बैंक लोन रिकवरी केसेस, मोटर एक्सीडेंट केसेस, चेक बाउंस केसेस, ठीक है। परमानेंट लोक अदालत क्या है देखिए, नेशनल लोक अदालत मतलब क्या एक दिन मतलब वो कॉन्डक्ट करेगा, लेकिन परमानेंट अदालत इट विल बी परमानेंट एस्टैब्लिश्ड अंडर सेक्शन 22B ऑफ द लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट, ठीक है। इट डील्स विद डिस्प्यूट रिलेटेड विद पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, हैज द पावर टू डिसाइड केसेस ऑन मेरिट्स, पार्टीज फेल टू रीच ए सेटलमेंट अनलाइक रेगुलर लोक अदालत, ठीक है। पब्लिक यूटिलिटी सर्विस इंक्लूडेड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, पोस्टल सर्विसेज, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, इन सबको लेके लोक अदालत क्या कर सकता है, परमानेंट लोक अदालत अपना डिस्प्यूट रिजोल्व कर सकता है। स्टेट लोक अदालत इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय स्टेट लेवल, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टेड बाय स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, हैंडल केसेस विद इन द स्टेट जुरिडिक्शन। डिस्ट्रिक्ट लोक अदालत कहाँ पे होगा, डिस्ट्रिक्ट में होगा, है ना। इट इज कंडक्टेड एट द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेवल, ऑर्गेनाइज्ड बाय डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज। यहाँ पे डिस्प्यूट जैसे फॉर एग्जांपल मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो गया, प्रॉपर्टी पार्टीशन वगैरह हो गया, कंपाउंडेबल क्रिमिनल केसेस वगैरह हो गया, इन सबको सॉल्व किया जाता है। तालुक लेवल में होगा, है ना। और एक है इंपॉर्टेंट ई लोक अदालत, मोबाइल लोक अदालत भी है। मोबाइल लोक अदालत देखिए जनरली क्या होता है, इट इज मोबाइल मीन्स इट विल रोम अराउंड द
रूरल एरियाज एज वेल एज द हिली एरियाज, और जहाँ पे मतलब इतना इजी है नहीं जस्टिस को एक्सेस करना, वहाँ पे लोक अदालत कंडक्ट किया जाता है, वहाँ के लोगों का जो डिस्प्यूट वगैरह है उन सबको रिजोल्व किया जाता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, मोबाइल लोक अदालत। इसका कोई मतलब स्पेसिफिक एक लोकेशन नहीं है, it will roam around the important spaces which are not directly connected with the justice system, और जो मतलब थोड़ा दूर है, मतलब ठीक है, रूरल एरिया से, जहाँ के लोग मतलब जस्टिस सिस्टम को अप्रोच नहीं कर सकते हैं, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू डू दैट, वहाँ पे लोक अदालत एक्सेसिबल होता है उन लोगों के लिए, और वहाँ पे डिस्प्यूट रिजोल्यूशन किया जाता है उन लोगों का, ठीक है। और एक है इंपॉर्टेंट ई लोक अदालत, ये जनरली कोविड-19 के समय पे यूज़ किया गया था कि मतलब ऑनलाइन हियरिंग वगैरह भी हो सकता है, ठीक है। दीज आर द थिंग्स फॉर लोक अदालत। उसके बाद VB ग्राम बिल, ये क्या है, MG नरेगा को रिप्लेस करने वाला है, ठीक है। इसको थोड़ा देखते हैं, देखिए क्या है। पहले MG नरेगा क्या था वो पहले बता देता हूँ मैं। MG नरेगा क्या था, 100 डेज का मतलब राइट टू वर्क देता था गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट पे करता था पूरा राइट, और मतलब जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह है वो उन सब के लिए स्टेट गवर्नमेंट देता था, लेकिन जो वेज है वेज के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ही पे करता था। और 100 डेज का कंपलसरी वर्क मतलब राइट टू वर्क, गारंटीड वर्क एक साल में वो प्रोवाइड करता था। अभी जो VB ग्राम ये जो बिल लाया गया है, मतलब गवर्नमेंट हैज ब्रॉट दिस थिंग, इससे क्या होगा, MG नरेगा को रिप्लेस किया जाएगा, ठीक है। इट विल नॉट बी बेस्ड ऑन राइट बेस्ड नहीं होगा, ये डिमांड ड्रिवन होगा, मतलब जब कम होगा, ठीक है, व्हेन देयर इज वर्क देन ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट विल रिलीज फंड, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब, और मतलब ये भी है, पहले देखिए कब क्या है, पहले बजट एलोकेशन था नहीं MG नरेगा के लिए, बजट एलोकेशन मतलब एक लमसम तो था, लेकिन जितना लोग मतलब काम चाहेंगे उतना पैसा ही सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। अभी क्या होगा, एक बजट फिक्स होगा, उसी बजट में से ही पैसा स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाएगा, ठीक है। उससे ऊपर अगर खर्च हो रहा है तब को स्टेट गवर्नमेंट को मतलब पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा चेंजेस किया गया है, पहले 100 दिन था, अभी 125 डेज किया गया है, ठीक है। बिकॉज देखिए जो फिजिकल जो मतलब फेडरलिज्म है उसके ऊपर मतलब थोड़ा ये डिबेट है, क्योंकि देखिए जो गवर्नमेंट के ऊपर जो फिजिकल प्रेशर है वो भी बढ़ रहा है, ठीक है, स्टेट के ऊपर भी बढ़ रहा है, लेकिन हाँ यहाँ पे ये क्रिटिसिज्म ये है कि देखिए एक स्पेसिफिक बजट आप एलोकेट कर देंगे मतलब 125 डेज वर्क के लिए, ठीक है। अगर एम्प्लॉइज बढ़ जाए, मतलब जो काम मांगने वाले लोग हैं वो अगर बढ़ जाए, एक स्पेसिफिक अमाउंट्स के ऊपर बढ़ जाए, जो एडिशनल अमाउंट है उस एडिशनल अमाउंट को पे करना पड़ेगा स्टेट को। इसके वजह से तो स्टेट का जो मतलब फिजिकल हेल्थ है वो तो खराब हो जाएगा, क्योंकि पहले ये पूरा पैसा कहाँ से आता था, सेंटर से आता था, अभी स्टेट से आ रहा है। तो जो ये VB ग्राम वाला है वो MG नरेगा को रिप्लेस करने वाला है। VB ग्राम क्या करने वाला है, जो बजट एलोकेशन है वो फिक्स करने वाला है, उसके ऊपर अगर पैसा मतलब खर्च हो रहा है तब तो स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। और ये पहले जो 100 डेज था, 100 डेज को ये इंक्रीज करके कितने करने वाला है, 125 डेज करने वाला है, ठीक है। मैंने आपको पूरा बता दिया है, एक बार फिर से हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। द गवर्नमेंट प्रोपोजेस रिप्लेसिंग MG नरेगा विद विकसित भारत गारंटीड फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण VB ग्राम। द न्यू फ्रेमवर्क मूव्स फ्रॉम राइट बेस्ड डिमांड ड्रिवन गारंटी टू ए सप्लाई ड्रिवन एम्प्लॉयमेंट मॉडल व्हाइल रेजिंग स्टेट फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने बोला ना कि एक फिक्स बजट होगा, उस बजट से अगर ऊपर चला गया तब किसको पे करना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। पहले कौन करता था, MG नरेगा में सेंटर ही करता था, इन MG नरेगा पहले सेंटर ही करता था, अभी स्टेट को करना पड़ेगा। द एडिशनल फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी हैज टू बी बोर्न बाय द स्टेट। MG नरेगा क्या था, 2005 में ये एक्ट पास हुआ था, 100 डेज ऑफ अनस्किल्ड वर्क ये गारंटी देता है, ठीक है। वेज सिक्योरिटी, वोमेन पार्टिसिपेशन, ये सब थोड़ा इंक्रीज करता था, जो वनरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उन सब के लिए एक सेफ्टी नेट जैसा था, क्योंकि 100 डेज ऑफ गारंटीड वर्क ये प्रोवाइड करता था। अनस्किल्ड लेबर वेजेस जो है, द सेंट्रल गवर्नमेंट बियर्स 100% ऑफ इट। MG नरेगा में सेंट्रल गवर्नमेंट बियर्स 100% ऑफ द वेज कॉस्ट फॉर अनस्किल्ड मैनुअल वर्क। Material cost and skill wages are borne by center as well as state in a 75:25 ratio, ठीक है। VB ग्राम में क्या क्या बोला गया है देखिए, इंक्रीज द जॉब गारंटी, पहले कितना दिन का था, 100 दिन का, अभी 125 डेज। फंडिंग स्ट्रक्चर क्या हुआ है देखिए, इंट्रोड्यूसेस ए सेंटर स्टेट फंडिंग मॉडल, 60:40 फॉर मोस्ट स्टेट, 90:10 फॉर नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट एंड 100% फॉर सेंटर फंडिंग फॉर यूटीज, ठीक है। पहले थोड़ा दूसरा था, अभी दूसरा हो गया, इट इज लाइक ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जैसा हो गया है, ठीक है।
नॉर्मेटिव एलोकेशन मतलब क्या है वो देखिए। नॉर्मेटिव एलोकेशन क्या है? इंस्टेड ऑफ ओपन एंडेड फंडिंग, मतलब ओपन एंडिंग फंडिंग मतलब जितना लोग आएंगे उतना पैसा गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। अभी नॉर्मेटिव मतलब क्या? एक बजट एलोकेशन हो जाएगा, उसके ऊपर अगर कुछ आएगा उसको तो मतलब स्टेट को ही बॉन्ड करना पड़ेगा। फंड्स विल बी एलोकेटेड बेस्ड ऑन नॉर्मेटिव बजटिंग and cost beyond this may be borne by the states. The normative allocation means that the central government will pre-decide a fixed amount of money. एक fixed amount of money, एक budget fix किया जाएगा, norm set किया जाएगा, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं? normative allocation, ठीक है? That each state will receive for the rural employment program based on a formula. It will be what? Earlier क्या था? डिमांड ड्रिवन था, जितना लोग काम मांग रहे हैं उतना पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ रहा है। अभी क्या होगा? एक फिक्स एलोकेशन होगा, उसी हिसाब से आपको एलोकेट करना पड़ेगा। ये जो वीबीग्राम है इसमें एग्रीकल्चर पॉज के बारे में बोला गया है कि जो 60 डेज है वो 60 डेज में वर्क नहीं होगा, मतलब अप टू 60 डेज ऑफ एग्रीकल्चर पॉज मे बी नोटिफाइड ड्यूरिंग पीक फार्मिंग सीजन्स व्हेन एम्प्लॉयमेंट वर्क अंडर द स्कीम मे नॉट बी अंडरटेकन टू एंश्योर लेबर इज अवेलेबल फॉर फार्मिंग। मतलब 60 डेज का पॉज रहेगा, बिकॉज इट इज कंसिडर्ड एज कि मतलब उस समय में तो लोग जो लेबर क्लास के लोग हैं वो सब तो क्या होंगे? एग्रीकल्चर मतलब प्रोड्यूस में वो लोग बिजी रहेंगे, तब तो अनस्किल वगैरह जो मतलब जो काम है वो तो नहीं हो पाएगा। उसी लॉजिक से ये दिया गया है। डिफरेंस क्या है यहाँ पे मैंने बता दिया है, एक टेबल आकार में दे दिया है मैंने, आप लोग देख सकते हैं। यू कैन पॉज द वीडियो एंड चेक इट। पीडीएफ में ही दे ही दूंगा इन सब का। मेरा जो पीडीएफ है ये सब आप लोग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से ले सकते हैं, स्पेशली फॉर टेलीग्राम। यू कैन डाउनलोड दिस पीडीएफ। इम्प्लीकेशन ऑफ दिस बिल क्या है? इंक्रीज डेज ऑफ द वर्क, स्ट्रक्चर लाइवलीहुड प्लानिंग, अलाइन विद लॉन्ग टर्म रूरल डेवलपमेंट, ये तो सही है। कॉन्सर्न्स क्या क्या है? लॉस ऑफ लीगल गारंटी वीकेंस द सेफ्टी नेट, ठीक है। पहली बात तो ये है, बजट कैप हो गया है, पहले बजट कैप नहीं था, ठीक है। स्टेट में स्ट्रगल टू बियर द हायर कॉस्ट, तो जो फिजिकल प्रेशर है, फिजिकल प्रेशर फॉर द स्टेट गवर्नमेंट में इंक्रीज, ठीक है। रिस्क ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ वनरेबल ग्रुप्स ऑब्वियसली, है ना। डाइल्यूट द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ शिफ्टिंग अथॉरिटी फ्रॉम ग्राम सभा टू सेंटर, तो ग्राम सभा से कहाँ पे चला गया है? सेंटर की तरफ चला जाता है। क्योंकि देखिए ग्राम सभा जनरली क्या करते थे? जॉब एलोकेशन करते थे, उसके हिसाब से लोग भी जाते थे, काम मांगते थे। गवर्नमेंट हैज टू पे द गवर्नमेंट हैज टू गिव द एम्प्लॉयमेंट एट द सेम टाइम पे द वेजेस, वो मतलब सेंटर देना पड़ता था। अभी तो सेंटर ने फिक्स कर दिया था, नॉर्म कर दिया है कि नहीं इतना ही पैसा देंगे, है ना। तो वो एक दूसरा बात हो गया है, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट इट इन द टेलीग्राम ग्रुप। ये देखिए, ये नेक्स्ट जो टॉपिक है यहाँ पे क्या दिया गया है? लोकसभा स्पीकर ऑन जजेस इंक्वायरी कमेटी। अभी देखिए मैंने आई थिंक लास्ट वीक में होगा शायद, मैंने आप लोगों को बताया था कि मतलब जजेस को रिमूव कैसे किया जाता है, ठीक है। क्योंकि एक मतलब न्यूज़ आया था, उसमें मैंने बताया था, उसमें मैं थोड़ा आपको पूरा प्रोसीड्योर बताया था। उस प्रोसीड्योर में ये मैंने बोला गया था कि मतलब देखिए जो एक इंक्वायरी कमेटी गठित किया जाएगा, ठीक है, उस इंक्वायरी कमेटी को गठित करने से पहले बोथ हाउसेस हैज टू एक्सेप्ट इट, है ना। बोथ हाउसेस हैज टू जॉइनली क्रिएट ए इंक्वायरी कमेटी, ठीक है। अगर वो प्रोसीजर फॉलो ना हो तब तो इशू आ जाएगा। वही इशू आया है एक्चुअली। क्या हुआ है कि विदाउट द अप्रूवल ऑफ राज्यसभा, विदाउट द अप्रूवल ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, द स्पीकर ऑफ लोकसभा हैज क्रिएटेड ए इंक्वायरी कमिटी to inquiry whether that person has violated the constitution or not, और मिसबिहेवियर क्या है कि नहीं उसको चेक करने के लिए। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस जारी किया है कि यू आर नॉट फॉलोइंग द राइट प्रोसीड्योर, है ना, यू आर नॉट फॉलोइंग द राइट प्रोसीड्योर। जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में जो प्रोसीड्योर बोला गया है वो प्रोसीड्योर फॉलो नहीं कर रहे हो, वही केस है यहाँ पे, ठीक है। वही मैं थोड़ा दिखा देता हूँ आप लोग को। देखिए, सुप्रीम कोर्ट है इशू नोटिस टू द लोकसभा स्पीकर ऑन द पिटीशन अलाइंग दैट committee formed to investigate corruption charges against the Justice Yashwant Verma created without following mandatory procedure under Judges Inquiry Act of 1968। core issue क्या है देखिए, the challenge is that speaker set up the inquiry committee before the motion was admitted by both houses। both houses को ही क्या करना पड़ेगा, ये मोशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ज्वाइंट कंसल्टेशन करना पड़ेगा राज्यसभा चेयरपर्सन के साथ, उसके बाद इंक्वायरी कमेटी गठित करना पड़ेगा। वही प्रोसीड्योर था, लेकिन वो प्रोसीड्योर फॉलो नहीं किया गया है, ठीक है। लॉ क्या बोलता है? ए रिमूवल मोशन मस्ट बी फॉर्मली एडमिटेड इन बोथ द हाउसेस, ओनली देन ए 3-member इंक्वायरी कमिटी विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। द लोकसभा स्पीकर प्लस राज्यसभा चेयरपर्सन मस्ट एक्ट jointly। The committee's report determines whether the motion can be voted upon।
अगर इंक्वायरी कमेटी बोलता है कि हाँ ये मतलब प्रूफ मिसबिहेवियर प्रूफ हो चुका है, तब दोनों हाउसेस में क्या होगा, वोटिंग होगा, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। अगर स्पेशल मेजोरिटी से मतलब पास होता है, उसके बाद प्रेसिडेंट उसको रिमूव कर देगा, है कि नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्यों मतलब नोटिस जारी किया है, क्योंकि देखिए लोकसभा का जो मतलब स्पीकर है, उन्होंने राज्यसभा के साथ, राज्यसभा के जो चेयरपर्सन है उनके साथ बिना मतलब नेगोशिएशन मतलब क्या, बिना एक्सचेंज ऑफ व्यूज किए राज्यसभा में एडमिट हुए बिना ही इंक्वायरी कमेटी गठित कर दिया है, ठीक है। इसीलिए ये सही प्रोसीड्योर नहीं है, ये बोला गया है, ठीक है। Thus the case sits in the intersection of parliamentary privilege, judicial accountability and constitutional procedure. तो यही है न्यूज़ यही था। लेकिन ये देखिए इतना बहुत बड़ा न्यूज़ है नहीं, आपको फोकस करना है कि जो प्रोसीड्योर है, रिमूवल ऑफ जजेस प्रोसीड्योर है, उसके ऊपर फोकस करना है। मैंने वो पहले आपको बता दिया है। अभी ये सिर्फ न्यूज़ था मतलब, ठीक है, उसी न्यूज़ का एक नेक्स्ट न्यूज़ था, फॉलोअप था, वही मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, क्योंकि मैंने पूरा प्रोसीड्योर आपको समझा ही दिया था। ये क्वेश्चन है, आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। द लास्ट टॉपिक इज ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम ऑफ इंडिया। ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम मतलब जो आयुष, स्वारिकपा, ठीक है, ये सब, सिद्धि, उसके बाद ये सब आपका क्या है, आयुर्वेदा, ये सब क्या है आपका ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम बोला जाता है। अभी देखिए क्या हुआ है, न्यूज़ क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है। द WHO Global Summit on Traditional Medicine 2025 Leaders Integrating Traditional System and Modern Healthcare. Now it will be conducted in India. Okay, India will host the second WHO Global Summit on Traditional Medicine. इसीलिए ये न्यूज़ में है। India's traditional medicine ecosystem क्या है, थोड़ा दिखाते हैं हमें। देखिए India's pluralistic healthcare system includes Ayurveda, Yoga, Unani, Siddha, Swarikpa, ठीक है, and Homeopathy, governed by the Ministry of Ayush, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ क्या क्या है, कितना मतलब इंस्टीट्यूशंस वगैरह है। अराउंड 3,844 आयुष हॉस्पिटल्स आर देयर, 36,000 डिस्पेंसरीज आर देयर, 7.5 लाख प्रैक्टिशनर्स आर देयर। आयुष इंटीग्रेशन विद पीएचसी, सीएचसी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स टू नेशनल आयुष मिशन, ठीक है। आयुष यूनिवर्सिटीज वगैरह, रिसर्च इंस्टीट्यूट वगैरह भी क्या है, ये सब बना जा रहा है, ठीक है। अभी देखिए गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या है, ये जो ट्रेडिशनल मेडिसिन वगैरह है, ट्रेडिशनल मेडिसिन वगैरह को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव क्या क्या लिया है। अभी देखिए ट्रेडिशनल मेडिसिन में एक ही इशू आता है कि दे आर नॉट वेरी इंस्टेंटली इफेक्टिव, बट इन लॉन्ग टर्म दे आर वेरी बेनिफिशियल। जो मतलब एलोपैथिक मतलब मेडिसिन वगैरह है, वो आर दीज आर इंस्टेंट, दे प्रोवाइड इंस्टेंट रिलीफ, ठीक है। दैट्स व्हाई दे आर पॉपुलर देन द आयुष मेडिसिन। बट आयुष, द ट्रेडिशनल मेडिसिन जनरली वर्क in a very slow fashion, but they do not have any kind of side effects, okay, and in long term they will give you some good benefits than the allopathic medicines. देखते हैं कौन सा इनिशिएटिव वगैरह है। नेशनल आयुष मिशन, उसके बाद आयुर्विज्ञान, ठीक है, मेडिसिनल प्लान स्कीम्स, TKDL ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। ये क्या काम करता है, इट प्रिवेंट्स बायोपायरेसी, सपोर्ट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन, ठीक है। इसमें ये बोला जाता है कि मतलब ये जो ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी है, इस लाइब्रेरी में इंडिया का जो ट्रेडिशनल नॉलेज है रिगार्डिंग द मेडिसिन, इन सबको डाला जाता है। उसके बाद ये डाला इसलिए जाता है, इसको इसलिए स्कोर किया जाता है क्योंकि जो फॉरेन कंपनीज वगैरह हैं, फॉरेन कंपनीज कभी क्लेम करता है कि देखिए ये तो मेरा इनोवेशन है। एक कंपनी था, आई थिंक इट इज़ बेस्ड ऑन यूरोप, उसने बोला था कि मतलब हल्दी जो है, मतलब ट्यूमरिक जो है, उसका जो मेडिसिनल क्वालिटीज़ वगैरह है ये उन्होंने इन्वेंट किया है। लेकिन हल्दी, ट्यूमरिक इज बिन ट्रेडिशनल मेडिसिन फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स इन इंडियन कल्चर। तो इसीलिए इसको मतलब बोलना कि देखिए ये हम लोग का ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है, हम लोग को ये पहले से पता है, ठीक है, इट इज आवर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यू कैनॉट स्टोल अस फ्रॉम अस। बायोपायरेसी नहीं कर सकते आप, इसीलिए TKDL प्लेज ए वेरी सिग्निफिकेंट रोल प्रोवाइडिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन, ठीक है। आयुष ग्रिड, मेडिकल वैल्यू ट्रेवल, ठीक है, ये सब क्या है इनिशिएटिव्स है गवर्नमेंट का टू प्रमोट ट्रेडिशनल मेडिसिन। पॉलिसी लिंकेजेस क्या क्या है एक बार देखिए। ग्लोबल एंगेजमेंट में क्या क्या समिट विल लॉन्च, ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल लाइब्रेरी, ग्लोबल रिसर्च रोड मैप, टूल्स फॉर बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन, एविडेंस मैपिंग एंड वन हेल्थ इंटीग्रेशन। अभी देखिए वन हेल्थ इंटीग्रेशन क्या है बताइए तो मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, वन हेल्थ इंटीग्रेशन मतलब क्या है। देखिए मैं बता ही देता हूँ, वन हेल्थ मतलब क्या है,
इट इज़ अ कॉन्सेप्ट कि मतलब द एनिमल लाइफ एज वेल एज ह्यूमन लाइफ आर कनेक्टेड, ठीक है, हम सबको एक ही साथ रहना है, वी नीड टू लिव एज वन हेल्थ यूनिट। अगर एनिमल हेल्थ इज नॉट दैट गुड, देन ह्यूमन हेल्थ कैन नॉट बी बेटर, ठीक है, ह्यूमन हेल्थ आर एट रिस्क। इसी कॉन्सेप्ट को बोला जाता है वन हेल्थ, कि इंसानों का हेल्थ को अगर सही रखना है तो आपका आसपास में जो एनिमल वगैरह हैं उन सब का हेल्थ को भी सही रखना पड़ेगा, इसी को वन हेल्थ बोलते हैं। तो द होल्स जो ये ट्रेडिशनल मेडिसिन समिट है, इट विल फोकस ऑन वन हेल्थ इंटीग्रेशन ऑल्सो, ठीक है। तो यही सा टॉपिक यहाँ पे मैंने ये शॉर्टकट करके आपको दे दिया है, समरी दे दिया है, एंड दिस इज ए क्वेश्चन, यू कैन attempt it and submit me in the telegram group. If you submit me, then I can obviously try to check it out. Okay, so that's all from my side. Thank you.